Good morning, friends. Yes. So, welcome to sixth lecture of this comprehensive revision batch. Online guys, YouTube students, just confirm in chat box. Am I audible? So, guys, we started with the topic of bills of exchange and promissory notes. For credit transactions and their settlement, we need negotiable instruments, and commonly used negotiable instruments in India are checks, bills of exchange, and promissory notes. In that, checks usage is highest usage. Maximum times we use the maximum time we use checks in settlement. But when it comes to some of the transactions, we also come across bills of exchange and promissory notes. So in this topic, we will be first understanding what is bills of exchange. So we understood that bill of exchange is an instrument in writing containing an unconditional order signed by the maker directing a certain person to pay a certain sum of money only to or to the order of a certain person or the bearer of the instrument. हम लोगों ने डिटेल में कल समझा कि बिल की कंसेप्ट एग्जैक्ट क्या होती है. थ्री पार्टीज टू बिल ऑफ एक्सचेंज: ड्रॉवर, ड्रॉई, पेई. One who draws the bill is drawer, on whom the bill is drawn is drawee, and the person to whom the amount of bill is payable is payee. Drawee pays the amount either to drawer or to whomsoever drawer will ask, and therefore drawer and payee may or may not be same. दोनों सेम भी हो सकते हैं, दोनों सेम नहीं भी हो सकते, दोनों पॉसिबिलिटीज है. सो इफ क्वेश्चन इज आस्क्ड हाउ मेनी पार्टीज टू बिल ऑफ एक्सचेंज, simply the answer will be three parties: drawer, drawee, and payee. After that, we spoke about a bill before its acceptance is called as draft. After its acceptance, it becomes the bill. फिर मैच्योरिटी डेट, ड्यू डेट ऑफ द बिल की हमने बात की. वी स्टार्ट आइदर विद डेट ऑफ द बिल और वी स्टार्ट विद डेट ऑफ एक्सेप्टेंस. टू दैट वी ऐड थ्री to that we add tenure of the bill, period of the bill. While adding tenure or period of bill, don't convert days into months or months into days. As it is, whatever is given, just add that, and to that you add 3 grace days. फिर हम लोगों ने एंड में जाते जाते क्या क्या ऑप्शंस है ड्रॉवर के पास इन रिलेशन टू बिल ऑफ एक्सचेंज उसकी बात की थी. Bill of exchange with drawer, he has four options with him. He may either retain the bill, or he may send the bill to bank for collection, he may discount the bill with bank, or he may endorse the bill. ये चारों भी ऑप्शंस की भी हमने कल डिस्कशन करके मीनिंग समझा कि क्या एग्जैक्टली. रिटेनिंग ऑफ बिल इज जस्ट कीपिंग द बिल विद बैंक विथ drawer himself, and he will wait till due date and then present the bill on due date to drawee, and then further course of action will be taken. सेंडिंग द बिल टू बैंक फॉर कलेक्शन में क्या होता है, तो not the ownership but just the possession of the bill is given to the bank, and on behalf of drawer, bank collects the amount on due date from drawee. So keep in mind, when the bill is sent to bank for collection, it is not transfer of ownership, it is only transfer of possession in favor of bank. Third option is what? ना ना, ट्रांसफर ऑफ पोजेशन इन फेवर ऑफ बैंक ओनली. पोजेशन तो बैंक को ही दे रहे ना बिल का. थर्ड इज डिस्काउंटिंग ऑफ बिल. Now, what is discounting of bill? Discounting of bill is transfer of ownership along with possession in favor of bank. In return of this discounting, bank pays you the bill amount after deducting discount. That discount is income for the bank and expense for the drawer. And last वाला option है endorsement of bill, where the bill is transferred along with its ownership and possession in favor of creditor of the drawer. ड्रॉवर ने जिस किसी को पेमेंट देना है, जो भी कोई क्रेडिटर रहेगा, तो सेटलमेंट पे वो बिल भी दे सकता है, बिकॉज अल्टीमेटली बिल इज द एसेट ऑफ द ड्रॉवर एंड इट इज नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफरेबल फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन, एंड देयरफॉर द बिल कैन बी एंडोर्स्ड बाय एंडोर्सर टू द एंडोर्सी. After endorsement, who will become the owner of the bill? Endorsee will become the owner. And how many times a bill can be endorsed? A bill can be endorsed any number of times. There are no restrictions on transfer of endorsements of bill before its due date.
अब अलग अलग पॉसिबिलिटीज की बात कर लेते क्विकली. व्हाट डू यू मीन बाय ऑनर ऑफ बिल? ऑनर ऑफ बिल इज पेमेंट ऑफ बिल ऑन इट्स ड्यू डेट. जब ड्यू डेट पे ड्रॉई को बिल प्रेजेंट किया जाता है और अगर ड्रॉई पेमेंट कर देता है तो दैट इज रेफर्ड एज ऑनर ऑफ बिल. व्हाट इज डिसऑनर ऑफ बिल? डिसऑनर ऑफ बिल इज नॉन पेमेंट ऑफ बिल ऑन ड्यू डेट. ड्यू डेट पे अगर ड्रॉई पेमेंट कर नहीं पाया ड्रॉवर को या जो भी पेई है उसको, द बिल इज कंसिडर्ड एज डिसऑनर्ड. बेसिकली डिसऑनरेबल तो क्या है, जब ड्रॉई ने बिल एक्सेप्ट किया था तो ही हैड गिवन द कमिटमेंट दैट ही विल मेक द पेमेंट ऑन ड्यू डेट. But if he is not making the payment on due date, he is dishonoring his commitment which he had given when he had accepted the bill. So that is referred as dishonor of bill. So payment of bill on due date is honor of bill. Non-payment of bill on due date is dishonor of bill. Another possibility is retirement of bill. Now what is retirement of bill? Retirement of bill is a situation where the bill amount is paid by the drawee बिफोर इट्स ड्यू डेट. ड्यू डेट के पहले अगर बिल पेमेंट हो जाता है तो उसको बोलते हैं रिटायरमेंट. एक महीने बाद ड्यू डेट है लेकिन आज ही अगर ड्रॉई ड्रॉवर के पास अप्रोच होके बोलता है एक महीने पहले कि लेट्स सेटल द बिल, मैं आज जल्दी पैसा देने को तैयार हूँ, मेरे पास पैसा है तो ले लो. ऑब्वियसली ड्रॉवर विल बी वेरी हैप्पी टू गेट द अमाउंट इन एडवांस, बट इन रिटर्न ऑफ दैट ड्रॉई विल एक्सपेक्ट कि भाई उसको कुछ उसमें से रिबेट मिले, उसको कुछ उसमें छूट मिले. ऑब्वियसली मैं अगर एक महीना पहले पैसे दे रहा हूँ एज अ ड्रॉई तो मैं ये तो बोलूंगा ही ना कि ये तो एक्सपेक्ट करूंगा कि भाई मुझे कुछ डिस्काउंट कंसेशन तो मिलना ही चाहिए. समझो 10,000 रुपये का बिल है, मैं एक महीना पहले पे कर रहा हूँ तो मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि भाई कम से कम 1% भी बोला एक महीने का तो 100 रुपये तो मैंने कम देने चाहिए. सो rebate is allowed when there is retirement of bill and such rebate is income for the drawee, expense for the drawer. ड्रॉवर क्यों बेयर करेगा? तो ड्रॉवर को एक महीना पहले पैसे मिल रहे हैं ना, अपने एग्जांपल में एक महीना पहले. अब वो तो डिपेंड करता है प्रॉब्लम में रिटायरमेंट कब हो रहा है. तो अभी के लिए तो तुम सिर्फ मीनिंग समझो, रिटायरमेंट ऑफ बिल इज पेमेंट ऑफ बिल बिफोर इट्स ड्यू डेट एट अ रिबेट. फिर सिचुएशन आती है रिन्यूअल ऑफ बिल की. रिन्यूअल, ये रिन्यूअल का फंडा क्या है? रिन्यूअल का फंडा ये है कि विथ म्यूचुअल consent, with mutual understanding between drawer and drawee, the bill is cancelled on its due date without non payment. बोल तो पेमेंट हुआ नहीं है फिर भी म्यूचुअल कंसेंट के साथ ड्रॉवर ड्रॉई के बिल को कैंसिल किया जाता है. फॉर एग्जाम्पल से पीयूष ने मेरे ऊपर बिल ड्रॉ किया था और मैंने एक्सेप्ट किया था, 10,000 रुपये का बिल था. अब आज ड्यू डेट है, अब ये आज ड्यू डेट पे मुझे बिल एक्चुअली ऑनर करना है बट मेरे पास पैसे हैं नहीं. तो मैं पीयूष के पास आया और मैंने पीयूष को रिक्वेस्ट की कि पीयूष मुझे और एक 2 महीने का टाइम दे, मैं 2 महीने में तेरे को पैसे दे दूंगा. तो म्यूचुअल कंसेंट के साथ पीयूष अगर एग्री हो जाता है तो पीयूष बोला कि ठीक है सर कोई प्रॉब्लम नहीं, कैंसिल कर देते इस बिल को. पीयूष बोला लेकिन सर कुछ अगर थोड़ी बहुत अमाउंट दे सकते हो तो उतनी दे दो, 10,000 रुपये का बिल है, 10,000 का नहीं दे सकते तो कुछ पार्शियल अमाउंट दे सकते तो वो दे दो. तो मैंने बोला ठीक है 2,000 रुपये मेरे पास, मैं 2,000 रुपये देता हूँ. अब अमाउंट कितनी बच गई? 8,000. तो पीयूष ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि भाई ये 8,000 अब 2 महीने बाद मिलेंगे उसको, तो 2 महीने का वो इंटरेस्ट लगाएगा वो 8,000 रुपये पे. और जायज़ बात भी है ना, गलत क्या है उसमें? आज ड्यू डेट थी, आज अगर मैं पे नहीं कर रहा हूँ और 2 महीने डिले हो रहा है तो उसके लिए तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी है ना. तो 2 महीने का वो मेरे से इंटरेस्ट रिकवर करना चाहता है. तो एक नया बिल बनाएंगे जिसमें पहले के बिल की आउटस्टैंडिंग अमाउंट जो अपने एग्जाम्पल में 8,000 है प्लस उसके ऊपर 2 महीने का इंटरेस्ट लगा के पीयूष एक फ्रेश बिल ड्रॉ करेगा. तो दिस होल सिचुएशन इज रेफर्ड एज रिन्यूअल ऑफ बिल. तो रिन्यूअल ऑफ बिल में क्या होता है? 4 स्टेजेस में रिन्यूअल ऑफ बिल हम डिस्कस कर सकते हैं. 4 स्टेजेस. कैंसलेशन ऑफ ओरिजिनल बिल, जो ओरिजिनल 10,000 रुपये का बिल था वो कैंसिल हो जाएगा सबसे पहले तो. देन देर विल बी पार्ट पेमेंट. अच्छा एक क्वेश्चन है, पार्ट पेमेंट रहना कंपल्शन है क्या? नहीं, कोई कंपल्शन नहीं है कि रिन्यूअल के टाइम पार्ट पेमेंट रहेगा ही. बट यूजुअली नॉर्मली वी सी दैट देयर इज पार्ट पेमेंट. नॉर्मली हम देखते हैं कि पार्ट पेमेंट रहता है बट कंपल्शन नहीं है, एक आध बार पार्ट पेमेंट नहीं भी रहेगा. सो फर्स्ट स्टेज इन रिन्यूअल इज कैंसलेशन ऑफ ओरिजिनल बिल. सेकेंड स्टेज इज पार्ट पेमेंट बाय ड्रॉई टू द ड्रॉवर. थर्ड स्टेज इज इंटरेस्ट चार्ज ऑन आउटस्टैंडिंग बैलेंस बाय ड्रॉवर ऑन ड्रॉई. एंड फाइनली fresh bill is drawn in place of old bill, the cancelled bill, fresh bill is drawn and accepted. So that is 4 stage in renewal of bill. तो रिन्यूअल के 4 स्टेप्स फिर से एक बार. कैंसलेशन ऑफ ओरिजिनल बिल, पार्ट पेमेंट बाय ड्रॉई टू द ड्रॉवर,
interest charged by drawer on drawee on outstanding amount, and last fresh bill drawn and accepted. So ये 4 स्टेजेस में रिन्यूअल होता है. और एक पॉसिबिलिटी आती है, वो पॉसिबिलिटी है इंसॉल्वेंसी ऑफ ड्रॉई. ड्रॉई इंसॉल्वेंट भी तो हो सकता है ना. तो ड्रॉई अगर इंसॉल्वेंट हो गया तो कंपल्सरीली द बिल विल बी डिसऑनर्ड. बिल विल बी डिसऑनर्ड. इंसॉल्वेंसी का मतलब ही ये होता है कि द पर्सन इज नॉट इन अ पोजिशन टू ऑनर हिज लाइबिलिटीज, टू पे हिज डेट्स, टू पे हिज लाइबिलिटीज. जब कोई इंसान उसके लाइबिलिटीज पे कर नहीं सकता तो वो इंसॉल्वेंट हो जाता है. तो अगर ड्रॉई इंसॉल्वेंट हो गया है तो ऑब्वियसली जिस बिल का वो ड्रॉई है वो बिल का पूरा अमाउंट वो पे नहीं कर सकता. और अगर वो पे नहीं कर सकता तो द बिल विल बी डिसऑनर्ड. तो जैसे ही ड्रॉई की इंसॉल्वेंसी आई, इमीडिएटली द आउटस्टैंडिंग बिल शुड बी कंसिडर्ड एज डिसऑनर्ड. डोंट इवन वेट फॉर ड्यू डेट. ड्यू डेट का भी वेट मत करो कि ड्यू डेट पे देखेंगे. अरे इंस्टॉलमेंट हो गया तो ड्यू डेट पे क्या करने वाला है भाई, वैसे भी वो पेमेंट नहीं करने वाला. सो द बिल विल बी डिसऑनर्ड इमीडिएटली ऑन इंसॉल्वेंसी. एंड आफ्टर इंसॉल्वेंसी पूरा अमाउंट तो मिलने से रहा. पूरा अमाउंट अगर मिलने वाला है तो इंसान इंसॉल्वेंट होगा ही क्यों. पूरा अमाउंट तो नहीं चाहने वाला, पार्शियल अमाउंट आएगी, मे बी 20 पैसे इन रुपी, 30 पैसे इन रुपी, 50 पैसे इन रुपी, तो पार्शियली अमाउंट कुछ आएगा. समझो 10,000 रुपए का बिल था, 20 पैसे इन रुपी कुड ओनली बी रिकवर्ड फ्रॉम ड्रॉइज स्टेट. ड्रॉई के स्टेट से सिर्फ 20 पैसे इन रुपी, वो तो 20% ही रिकवर कर पाए. तो 10,000 रुपए में से 2,000 रुपये रिकवर होंगे, तो बचे हुए जो 8,000 रिकवर नहीं हो पाए वो ड्रॉवर के लिए है बैड डेट्स एंड ड्रॉई के लिए है डेफिशिएंसी. दैट इज अकाउंटेड एज डेफिशिएंसी इन द बुक्स ऑफ ड्रॉई एंड बैड डेट्स इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवर. तो ये अलग अलग पॉसिबिलिटीज बिल ऑफ एक्सचेंज में आते हैं. तो पहला ऑनर ऑफ बिल, देन डिसऑनर ऑफ बिल, देन रिटायरमेंट ऑफ बिल, रिन्यूअल ऑफ बिल एंड इंसॉल्वेंसी ऑफ ड्रॉई. इंसॉल्वेंसी ऑफ बिल नहीं रहे, इंसॉल्वेंसी ऑफ ड्रॉई. ड्रॉई इंसॉल्वेंट होता है, बिल थोड़ी इंसॉल्वेंट होते रहता. हर जगह बिल आया बोल तो बिल बिल बोलेंगे क्या. यस. लिखो फटाफट लिखो, वन लाइनर लिखना ही है सब अपने को. Various situations in relation to bill of exchange. Various situations in relation to bill of exchange. Honor of bill. Payment of bill on its due date. Retirement of bill is payment of bill before its due date at a rebate.
Renewal of bill, it involves four stages as under. Cancellation of original bill. Part payment by drawee to drawer. Interest charged by drawer on drawee on outstanding balance. And last, fresh bill drawn by drawer on drawee. Fresh bill drawn by drawer on drawee. So ये चार स्टेजेस में रिन्यूअल होता है. एनी प्रॉब्लम? Last situation is insolvency of drawee. The outstanding bill will be dishonored compulsorily and partial amount might be received in solvent's estate. Partial amount might be received from insolvent's estate. The amount remaining unpaid will be accounted as bad debts in the books of drawer and as deficiency
in the books of drawing. तो इंसॉल्वेंसी पे क्या होगा? द आउटस्टैंडिंग बिल विल बी कैंसल्ड कंपल्सरीली एंड partial amount might be received from insolvent estate. The amount remaining unpaid will be accounted as bad debts in the books of drawer and deficiency as in the books of drawing. Is that clear? तो ये 5 अलग अलग पॉसिबिलिटीज हो सकते हैं बिल के. Either it will be honored or it will be dishonored, or it will be retired, or there will be renewal, or there might be finally insolvency of drawing. याद आ रहा है सब ये? कल जैसे हमने बात की थी, हम लोग एंट्रीज लिखते नहीं बैठेंगे बेटा. एंट्रीज लिखने में पूरा लेक्चर चला जाएगा. एंट्रीज नहीं लिखेंगे अपन, सिर्फ डिस्कस करेंगे. यस, सो आई जस्ट गो थ्रू द ट्रांजेक्शंस. मैं एक एक ट्रांजेक्शन आपको बोलता हूँ, एंट्री क्या होनी चाहिए ये समझाता हूँ, आप मेरे को एंट्रीज बताओ ड्रॉवर ड्रॉई दोनों के बुक्स में. फर्स्ट ट्रांजेक्शन इज ऑलवेज गोइंग टू बी ऑफ परचेस एंड सेल ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट. जब तक क्रेडिट ट्रांजेक्शन नहीं होता बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ भी तो नहीं होगा ना. सो परचेस एंड सेल ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट. What will be the entry in the books of drawer? Drawer is necessarily the seller, creditor. So what will be the entry for sale of goods on credit? Drawings account debit to sales account. What about books of drawing? Purchases account debit to drawers account. तो ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन होता है, उसकी एंट्री हम जो 11th में सीखे परचेस सेल की, वही एंट्री हमने की. बिल ऑफ एक्सचेंज इज ड्रॉन बाय ड्रॉवर ऑन ड्रॉई. बिल इज ड्रॉन. In the books of drawer, amount is receivable against that. For drawer, bill of exchange is an asset, so he accounts for it as a bills receivable. Asset है तो obviously asset को debit होगा. What will be the entry in the books of drawer? Bills receivable account debit to drawings account. In the books of drawing, for drawing it is a liability, and he will account for it as a liability. Bills payable, the entry will be ड्रॉवर्स अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेएबल अकाउंट. ये पहले के दो एंट्रीज जरा फिर से एक बार रिवाइज कर लेते. सेल ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट बुक्स ऑफ ड्रॉवर. ड्रॉइज अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट एंड ड्रॉइज बुक्स परचेसेस अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवर्स अकाउंट. बिल इज ड्रॉन बाय ड्रॉवर ऑन ड्रॉई बुक्स ऑफ ड्रॉवर. बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉइज अकाउंट ड्रॉइज बुक्स drawers account debit to bills payable account. Next is the 4 options which are available with the drawer. First option, bill is retained by the drawer. Guys, if bill is retained by the drawer, is it a transaction? ये कोई transaction है क्या? बिल रिटेन हुआ, बिल रिटेन हुआ, ये कोई transaction नहीं है, and therefore there won't be any entry neither in the books of drawer nor in the books of drawing. ना ड्रॉवर के बुक्स में एंट्री होगी, ना ड्रॉई के बुक्स में एंट्री होगी. सो रिटेनिंग ऑफ बिल, नो एंट्री. बिल इज सेंट टू बैंक फॉर कलेक्शन. इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवर द एंट्री विल बी, नाउ अंडरस्टैंड, बिल जब बैंक को दे रहे कलेक्शन के लिए आप, तो नाउ हु इज गोइंग टू कलेक्ट ऑन योर बिहाफ? बैंक. सो वी विल क्रिएट टेम्पररी अकाउंट. अगर लॉन्ग अकाउंट हेड यूज करना है तो बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन अकाउंट, नहीं तो फिर दूसरा छोटा सिंपल अकाउंट बैंक फॉर कलेक्शन अकाउंट. एंट्री विल बी बैंक फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट. What will be the entry in the books of drawing for this? No entry. The reason being this is a transaction between drawer and bank. So why will drawing pass the entry? याद करो मैंने आपको बोला था अमिताभ बच्चन परचेज ज्वेलरी फॉर ऐश्वर्या राय बच्चन. Why will I pass the entry for that? मेरे बुक्स में एंट्री करूंगा क्या मैं? अरे अमिताभ ने उसकी बहू के लिए खरीदे भाई ज्वेलरी, मैं काय को एंट्री करूंगा? मेरा ट्रांजैक्शन है क्या? बिल किसने भेजा बैंक को कलेक्शन के लिए? ड्रॉवर ने. तो ड्रॉई काय को एंट्री करेगा उसकी? विल देयर बी एनी एंट्री इन द बुक्स ऑफ ड्रॉई? बिल इज डिस्काउंटेड विद द बैंक. बिल अगर डिस्काउंटिंग हुआ है तो ओनरशिप भी पास ऑन हो गई और उसके बदले में ड्रॉवर को पैसा मिलता है. तो कैश और बैंक अकाउंट डेबिट, लेकिन पूरा मिलता है क्या? नहीं. तो कुछ अमाउंट डिस्काउंट की कट कर लेता है बैंक, और वो डिस्काउंट ड्रॉवर के लिए एक्सपेंस है. एक्सपेंस है बोलते हो नॉमिनल अकाउंट है. नॉमिनल अकाउंट है बोलते हो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स. व्हाट विल बी द एंट्री इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवर? कैश और बैंक अकाउंट डेबिट
discount account debit to bills receivable account. What will be the entry in the books of drawee? No entry. drawee की बुक्स में कोई एंट्री नहीं होगी. Next, bill is endorsed by drawer to his creditor, endorsee. So what will be the entry in the books of drawer? Endorsee account debit to bills receivable account. What will be the entry in the books of drawee? No entry. Again, no entry. Now, on due date, first possibility, the bill is honored. Bill is paid on due date by drawee to the payee. अब बिल ऑनर्ड में भी तो चार पॉसिबिलिटीज हो सकते हैं ना. रिटेन्ड बिल ऑनर्ड, bill sent to bank for collection honored, bill discounted with bank honored, and endorsed bill honored. So first possibility, bill was retained and it is honored. बिल रिटेन हुआ था तो किसके पास था? ड्रॉवर के पास ये था. तो ड्यू डेट पे ड्रॉवर ने बिल प्रेजेंट किया ड्रॉई को, ड्रॉई ने पेमेंट कर दिया. व्हाट विल बी द एंट्री इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवर फॉर रिसीट अगेंस्ट द बिल? कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट. What will be the entry in the books of drawee? He is making the payment of his liability called bills payable. So entry will be bills payable account debit to cash or bank account. Bill was sent to bank for collection and this bill is collected by the bank. जब बिल बैंक को कलेक्शन के लिए दिया था तो ड्रॉवर के बुक्स में हमने एंट्री पास की थी, बैंक फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट. तो बैंक फॉर कलेक्शन अकाउंट में डेबिट बैलेंस है ना, वो मिल गया. तो व्हाट इज द एंट्री? बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक फॉर कलेक्शन अकाउंट. बोल तो जिस अकाउंट को तुम डेबिट किए थे पैसा आना है बोल के, वो पैसा आ गया तो वो अकाउंट को क्रेडिट करना पड़ेगा. फिर से एक बार, व्हाट इज द एंट्री इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवर? बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक फॉर कलेक्शन अकाउंट. व्हाट विल बी द एंट्री इन द बुक्स ऑफ ड्रॉई? नो एंट्री. हाँ, नो एंट्री कैसे? पेमेंट होगा ना, ड्रॉई पेमेंट कर रहा है. bills payable account debit to cash or bank account. Next is bill was discounted with bank and it is honored. मेरे को बोलो बिल डिस्काउंटिंग के बाद ओनरशिप किसकी है? बैंक की है. तो ड्यू डेट के दिन ड्रॉई के पास जाएगा कौन? बैंक. बैंक खुद कलेक्ट करेगा एंड बैंक विल बी कलेक्टिंग ऑन इट्स ओन बिहाफ. खुद के बिहाफ पे कलेक्ट कर रहा है. तो ड्रॉवर को कुछ लेना देना है क्या? अब ड्रॉवर को तो पैसा मिल गया ना रे बिल के अगेंस्ट में पहले ही जब डिस्काउंटिंग हुआ. So if on due date this bill is honored, discounted bill is honored, will there be any entry in the books of drawer? No entry in the books of drawer. हाँ, ड्रॉई के बुक्स में पेमेंट की एंट्री. What is the entry? Bills payable account debit to cash or bank account. Last possibility, endorsed bill honored on due date. अगर endorsed bill का ऑनर हुआ है तो endorsee को पैसा मिला, ड्रॉई से मिला, तो उन दोनों के बीच का ट्रांजेक्शन हो गया. अगेन ड्रॉवर के बुक्स में एंट्री आएगी क्या? नो, बट ड्रॉई के बुक्स में पेमेंट की एंट्री आएगी. बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट. याद आ रही है सारे एंट्रीज एवरीवन? रिटायरमेंट ऑफ बिल. रिटायरमेंट ऑफ बिल इज पेमेंट ऑफ बिल बिफोर इट्स ड्यू डेट. मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले 5 मिनट पहले भी समझाते वक्त बोला रिटायरमेंट का मतलब क्या, कि 1 महीने बाद ड्यू डेट है बिल का और मैं अगर आज ही पेमेंट कर रहा हूँ 1 महीना पहले, मैं ड्रॉई हूँ, तो ऑब्वियसली यार मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि मेरे को कुछ रिबेट मिले उसमें. तो ये जो रिबेट मिलता है ड्रॉई के लिए इनकम होता है, ड्रॉवर के लिए वो एक्सपेंस होता है. तो व्हाट एंट्री ड्रॉवर विल पास फॉर रिटायरमेंट ऑफ बिल? कैश और बैंक अकाउंट डेबिट, जो भी अमाउंट मिलेगा वो अमाउंट. रिबेट अलाउड अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट. फिर से एक बार, क्या एंट्री होगी? कैश और बैंक अकाउंट डेबिट, रिबेट अलाउड अकाउnt डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट. व्हाट विल बी द एंट्री इन द बुक्स ऑफ ड्रॉई? bills payable account debit to cash or bank account to rebate earned account or rebate received account. Being income it will be credited. Any problem? Sure. चलो ड्रॉवर के बुक्स की एंट्री एक बार फिर से बोलो. रिबेट रिटायरमेंट की, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट, रिबेट अलाउड अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट. एंड ड्रॉई के बुक्स में बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट to cash or bank account to rebate earned account. Got it? Dishonor of bill. बिल जब डिसऑनर होता है तो लीगल डॉक्यूमेंट डिसऑनर हो रहा है तो उसकी एक लीगल प्रोसीजर डिफाइन की हुई है ना, वो प्रोसीजर पूरी करनी पड़ती है. देखो आपको याद रहेगा कि बिल ऑफ एक्सचेंज इज स्टैम्प्ड. स्टैम्प आता है उसके ऊपर, बोलते उसको लीगल वैल्यू आ जाती है.
वो एक लीगल डॉक्यूमेंट बोल के माना जाता है कोर्ट में भी एविडेंस के तौर पे। तो अगर वो डिसऑनर हो रहा है तो उसके लिए लीगल प्रोसीजर है टू रिकॉर्ड दैट डिसऑनर। देयर इज वन अथॉरिटी नोन एज नोटरी पब्लिक। नोटरी पब्लिक ऑफिसर के रिकॉर्ड्स में ये डिसऑनर ऑफ बिल रिकॉर्ड करा के लेना पड़ता है, नोटराइज करा के लेना पड़ता है, तब जाके वो कोर्ट में आगे जाके एविडेंस बोल के यूज होता है कि भाई ड्यू डेट पे बिल डिसऑनर हुआ हुआ था। तो ये जो प्रोसीजर है, ये प्रोसीजर कोई फ्री में नहीं होती। नोटरी पब्लिक के पास ड्रॉवर जाएगा या जो भी पेई था वो जाएगा और वो डिसऑनर का फैक्ट रिकॉर्ड कराएगा नोटरी के पास। उसके पैसे लगते हैं, उसको हम नोटिंग चार्जेस बोलते हैं। मेरे को बताओ ये नोटिंग चार्जेस पे कौन करता है? पे पे बोल रहा हूं मैं। वन हु इज गोइंग फॉर नोटिंग, जो नोटिंग कराने जा रहा है वो पे करता है। बट बेयर कौन करेगा? रॉय। क्यों? तो किसकी मिस्टेक थी? रॉय की थी। तो पे कौन कर रहा है दैट इज इररिलेवेंट। हो सकता है ड्रॉवर पे करेगा, हो सकता है बैंक पे करेगा, हो सकता है एंडोर्सी पे करेगा। पे कोई भी करने दो, जो भी ड्यू डेट के दिन पे है वो पे करेगा नोटिंग चार्जेस, बट अल्टीमेटली दोज विल बी रिकवर्ड फ्रॉम ड्रॉई। तो एक्सपेंस किसका है? वो ड्रॉई का है। तो डिसऑनर में भी चार पॉसिबिलिटीज में अपने को एंट्री समझने पड़ेंगे। रिटेन्ड बिल डिसऑनर्ड, bill sent to bank for collection dishonored, discounted bill dishonored and endorsed bill dishonored. अब what will be the entry in the books of drawer for retained bill dishonored? retained bill dishonor हो गया तो अभी फिर से ड्रॉई से पैसा रिसीवेबल दिखाना पड़ेगा। ऑब्वियसली उसने पेमेंट किया नहीं तो फिर से अमाउंट रिसीवेबल दिखानी पड़ेगी ना उससे। तो फिर से अमाउंट रिसीवेबल दिखाना है तो उसका अकाउंट डेबिट करेंगे। when any amount is receivable from a person, that person's account is debited. So on dishonor of bill in the books of drawer, draw's account is going to be compulsorily debited. कितने अमाउंट के लिए डेबिट होगा? नॉट ओनली बिल अमाउंट, सिर्फ बिल अमाउंट ही नहीं, नोटिंग चार्जेस भी रिकवरेबल है। तो रिटेन बिल के केस में तो नोटिंग कौन कराएगा? ड्रॉवर ही कराएगा। तो समझो समझो 10,000 रुपए का बिल है एंड 100 रुपए के नोटिंग चार्जेस है। तो अब ड्रॉवर ड्रॉई से कितना रिकवरेबल दिखाएगा? 10,100। सो द एंट्री विल बी ड्रॉइंग ड्रॉई अकाउंट डेबिट 10,100। ड्रॉई अकाउंट डेबिट 10,100 मतलब बिल अमाउंट प्लस नोटिंग चार्जेस। टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट 10,000, टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट 10,000 टू कैश और बैंक अकाउंट 100 noting charges paid. So once again, what is the entry in the books of drawer? Draw's account debit 10,100 to bills receivable account 10,000 to cash or bank account 100. ड्रॉई के बुक्स में क्या एंट्री करेंगे? बिल कैंसिल करना पड़ेगा ना, डिसऑनर हो गया है। बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट 10,000, नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट 100 टू ड्रॉवर्स अकाउंट 10,100 because amount is payable to the drawer. आ रहा है? बिल वॉज सेंट टू बैंक फॉर कलेक्शन एंड इट इज डिसऑनर्ड। सेम एंट्री, फर्क सिर्फ इतना है कि बिल्स रिसीवेबल को क्रेडिट करने के बजाय बैंक फॉर कलेक्शन को क्रेडिट करना पड़ेगा। व्हाट विल बी द एंट्री इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवर? ड्रॉइज अकाउंट डेबिट full amount means bill amount plus noting charges to bank for collection account bill amount to cash or bank account noting charges. ड्रॉई के बुक्स में एंट्री रिमेन्स सेम। द एंट्री इज बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट, नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू कैश टू ड्रॉवर्स अकाउंट। ड्रॉवर को पेबल है पूरा अमाउंट तो टू ड्रॉवर्स अकाउंट। फिर से एक बार ड्रॉई के बुक्स की एंट्री बोलो। बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट, नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवर्स अकाउंट। आया? बिल वॉज डिस्काउंटेड विद बैंक एंड इट इज डिसऑनर्ड ऑन ड्यू डेट। अब डिस्काउंटेड बिल था, डिस्काउंटेड, तो ओनरशिप किसकी थी? बैंक की थी। बैंक को ओनरशिप जो मिली वो किससे मिली? ड्रॉवर से। तो बैंक ने बिल का पैसा ड्रॉवर को दिया था ना। अब ड्यू डेट के दिन बैंक गया ड्रॉई के पास एंड ड्रॉई ने बिल डिसऑनर कर दिया। तो बीइंग ओनर नोटिंग कराने के लिए बैंक खुद ही जाएगा। बैंक विल गेट इट नोटराइज्ड। तो नोटिंग चार्जेस विल बी इनिशियली पेड बाय बैंक। बट एक चीज समझो बेटा, बैंक ड्रॉई के साथ झगड़ा करते नहीं बैठेगा। बैंक ड्रॉवर के अकाउंट से पैसा ले लेगा उतना। बैंक बोलेगा कि मैंने किसको पैसा दिया? ड्रॉवर को। ये ट्रांजैक्शन ओरिजिनल किसके बीच का है?
ड्रॉवर और ड्रॉई का है, तो वो दोनों देखिए भाई क्या है। बैंक बोलेगा कि हमने तुमको डिस्काउंटिंग के टाइम पैसा दिया ड्रॉवर को, बैंक डिसऑनर हो गया बिल तो ड्रॉवर से पैसा ले लेता है, और ड्रॉवर से जब वो पैसा लेता है तो बिल अमाउंट प्लस नोटिंग चार्जेस दोनों भी रिकवर करता है, एंड देन ड्रॉवर विल रिकवर इट फ्रॉम ड्रॉई. So what will be the entry in the books of drawer? Drawers account debit bill amount plus noting charges to bank account. कि तो ड्रॉवर को बैंक को पे करना पड़ता है. टू बैंक अकाउंट 10,100. ड्रॉई के बुक्स में एंट्री रिमेन सेम. बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवर्स अकाउंट. एनी प्रॉब्लम? एंडोर्स्ड बिल डिसऑनर्ड. अब एंडोर्स्ड बिल अगर डिसऑनर हुआ है तो उसमें दो और पॉसिबिलिटीज बनते हैं. पॉसिबिलिटी नंबर 1, एंडोर्स्ड बिल डिसऑनर हुआ तो एंडोर्सी खुद ही जाके नोटिंग कराया. क्या तो ओनर कौन था? एंडोर्सी था ना. तो एंडोर्सी हिमसेल्फ वेंट टू नोटरी पब्लिक एंड ही डिड द नोटिंग. अब उस केस में एंडोर्सी बिल अमाउंट प्लस नोटिंग चार्जेस ड्रॉवर से रिकवर करेगा, एंड ड्रॉवर विल रिकवर इट फ्रॉम ड्रॉई. सो ड्रॉवर के बुक्स में क्या एंट्री आएगी? Drawers account debit, that is bill amount plus noting charges, to endorsee account bill amount plus noting charges. पूरा अमाउंट एंडोर्सी को पेएबल है. ड्रॉई के बुक्स में एंट्री सेम, कोई फर्क नहीं. बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवर्स अकाउंट. What will be the entry in the books of drawer if noting charges are to be paid by drawer? एंडोर्सी आया ड्रॉवर के पास एंड एंडोर्सी बोला कि भाई मैं नहीं कराने वाला नोटिंग वोटिंग, मेरा कोई संबंध नहीं, तूने मेरे को बिल दिया था, एंडोर्स किया था, बिल डिसऑनर हो गया, तू तेरा देख क्या करना है. तो इन दैट केस एंडोर्सी डिड नॉट डू द नोटिंग. हु डिड द नोटिंग? ड्रॉवर हैज टू डू दैन इन दैट केस. सो नोटिंग चार्जेस किसने पे किए? ड्रॉवर ने. तो एंडोर्सी को सिर्फ बिल अमाउंट ही पेएबल रहेगा ना. सो व्हाट विल बी द एंट्री इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवर? Drawers account debit bill amount plus noting charges to endorsee account bill amount only, and to cash or bank account noting charges. ड्रॉई मस्त मजे कर रहा है, वही एंट्री पास कर रहा है. बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवर्स अकाउंट. एनी प्रॉब्लम? श्योर? सिंपल, वेरी सिंपल. रिन्यूअल ऑफ बिल. वो 4 स्टेप्स जो सामने दिख रहे हैं वो सामने रखो, तुरंत एंट्रीज याद आ जाते. सबसे पहले रिन्यूअल में क्या होगा? ओरिजिनल बिल कैंसिल करना है, और ये म्यूचुअल कंसेंट से हो रहा है तो हम उसको डिसऑनर नहीं बोलते. एक्चुअली डिसऑनर ही है, वो पेमेंट हो ही नहीं रहा है ना, तो है क्या है वो? डिसऑनर ही, बट म्यूचुअल कंसेंट से हो रहा है इसलिए वी कॉल इट एज कैंसलेशन. व्हाट विल बी द एंट्री इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवर? ड्रॉइज अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट. ड्रॉइज बुक्स bills payable account debit to drawers account. Part payment by drawee to the drawer, books of drawer. Cash or bank account debit to drawee's account. Drawee's books drawers account debit to cash or bank account. Interest charged by drawer on drawee on the outstanding balance. ये इंटरेस्ट जो है ड्रॉवर के लिए इनकम है एंड ड्रॉई के लिए एक्सपेंस है. So drawer के लिए इनकम है तो इंटरेस्ट विल बी क्रेडिटेड. एंट्री इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवर विल बी ड्रॉइज अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट, एंड ड्रॉइज बुक्स इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवर्स अकाउंट. एनी प्रॉब्लम? फ्रेश बिल ड्रॉन एंड एक्सेप्टेड. बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉइज अकाउंट. ड्रॉइज बुक्स ड्रॉवर्स अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेएबल अकाउंट. आया? सबका आया? श्योर? Last, dishonor of bill due to insolvency. इंसॉल्वेंसी आई तो कंपल्सरी डिसऑनर करना है ना पहले, तो डिसऑनर की एंट्री जो अभी हमने डिस्कस की वही है. अब बिल तो डिसऑनर हो कर देंगे हम इंसॉल्वेंसी पे. फाइनल डिविडेंड विल बी रिसीव्ड फ्रॉम इंसॉल्वेंट्स स्टेट. जो ड्रॉई इंसॉल्वेंट हुआ है उसके स्टेट से फाइनल पेमेंट मिलेगा, जो आधा अधूरा रहेगा, पूरा नहीं रहेगा. पूरा मिलने वाला है तो वो इंसॉल्वेंट है क्या? नहीं. इंसॉल्वेंट इसका मतलब ही पूरा पेमेंट नहीं मिलने वाला. पार्शियली द अमाउंट विल बी रिसीव्ड. जितना भी मिलेगा उतना रिसीट है, जो नहीं मिला वो बैड डेट्स है. एंट्री इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवर. कैश और बैंक अकाउंट डेबिट बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू ड्रॉइज अकाउंट. ड्रॉई के बुक्स में ड्रॉवर्स अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट
टू डेफिशिएंसी अकाउंट। फिर से एक बार, ड्रॉवर के बुक्स में कैश और बैंक अकाउंट डेबिट, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू ड्रॉइज अकाउंट, एंड इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवर्स अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट टू deficiency account. Any problem? All entries are clear? Everyone? Sure? सारे ये situations भी clear है आपको? चलो, before we go to promissory note and accommodation bill, ये पार्ट थोड़ा कंप्लीट कर लेते पहले, इसके जो प्रॉब्लम्स है बिल ऑफ एक्सचेंज के वो सॉल्व कर लेते। कम टू पेज नंबर 7। On 1st Jan 2022, Akshay draws two bills of exchange for 16,000 and 25,000. Bill of exchange for 16,000 is for 2 months, while the bill of exchange for 25,000 is for 3 months. These bills are accepted by Vishal. On 4th March 2022, Vishal requests Akshay to renew the first bill with interest at 15% per annum for a period of 2 months. Akshay agreed to this proposal. On 25th March, Vishal retires the acceptance for 25,000, the interest rebate, that is discount, being 250. Before the due date of renewed bill, Vishal becomes insolvent and only 50 paise in a rupee could be recovered from his estate. Show journal entries with narrations in the books of Akshay. एक काम करते हैं, अंडरस्टैंडिंग के लिए दोनों के बुक्स में एंट्रीज करते हैं, रॉबर्ट रॉय के। लिखो प्रॉब्लम नंबर 1, पेज नंबर 7। Problem number 1, page number 7. In the books of Akshay, bracket drawer, journal entries. Journal entries. One and a half page. 1.5 page. Then in the books of Vishal, bracket Roy,
जर्नल एंट्रीज दोनों के भी बुक्स में 1.5 पेज 1.5 पेज, अक्षय के भी बुक्स में 1.5 पेज, विशाल के भी बुक्स में 1.5 पेज। अक्षय इज ड्रॉवर, विशाल इज ड्रॉई। रेडी? I'll start. On 1st Jan 2022, Akshay draws two bills of exchange for 16,000 and 25,000. Go to books of Akshay. 1st Jan 2022. Bills receivable account debit. $41,000 to Vishal account 41,000, being two bills drawn for 2 months and 3 months respectively, being two bills drawn for 2 months and 3 months respectively. Go to books of Vishal. First Jan 2022. Akshay account debit. $41,000 to bills payable account. Being two bills accepted for 2 months and 3 months respectively. For 2 months and 3 months respectively. The bill of exchange for 16,000 is for 2 months, while the bill of exchange for 25,000 is for 3 months. These bills were accepted by Vishal. On 4th March 2022, Vishal requests Akshay to renew the first bill with interest at 15% per annum for the period of 2 months. पहले बिल का ड्यूरेशन कितना था? 2 महीने था, तो 1 जनवरी के आगे 2 महीने बोला तो 4th मार्च वैसे भी ड्यू डेट है फर्स्ट बिल की, तो ड्यू डेट पे विशाल ने रिक्वेस्ट किया कि पहला बिल रिन्यू करते, एंड अक्षय एक्सेप्टेड द प्रपोजल.
तो रिन्यू करना है पहला बिल, 16,000 का बिल जो है वो रिन्यू करना है। अगर वो रिन्यू करना है तो पहले ओरिजिनल बिल कैंसिल करना पड़ेगा। सो गो टू बुक्स ऑफ अक्षय, 4th March 22. What is the entry for cancellation of bill? Vishal account debit 16,000 to being bill cancelled for renewal. Being bill cancelled for renewal. Go to books of Vishal. Bills payable account debit 4th March 16,000 to Akshay account 16,000. Being cancellation of bill for renewal. Being cancellation of bill for renewal. Guys, read the sum carefully and tell me, is there any part payment given? पार्ट पेमेंट कुछ दिया है? नहीं। तो पार्ट पेमेंट नहीं दिया है तो डायरेक्टली पूरे अमाउंट पे, आउटस्टैंडिंग पे इंटरेस्ट आएगा। कितना इंटरेस्ट बोला है? 15% पर एनम फॉर अ पीरियड ऑफ 2 months। लोक एलसी पे 16,000 पे 15% 2 महीने के लिए 400 रुपीज। What is the entry in the books of drawer? It is recoverable from drawee. So Vishal account debit 400. Do one thing, show the calculation in bracket. 16,000 into 15% into 2 divided by 12. To interest account 400. Being interest charged on outstanding balance. Being interest charged for outstanding balance. विशाल के बुक्स में आओ। अक्षय, सॉरी, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू अक्षय। Interest account debit to Akshay account. Being interest payable on renewal of bill. On renewal of bill. What will be the fresh bill amount? 16,000
400. Entry for drawing of fresh bill. Books of Akshay. Bills. Receivable account debit. $16,400 to Vishal account 16,400. Being fresh bill drawn, being fresh bill drawn for 2 months, for 2 months, for outstanding balance, for outstanding balance along with interest, for outstanding balance along with interest. Go to books of Vishal. 4th March. Akshay account debit 16,400 to bills payable 16,400. Being fresh bill accepted for 2 months. Being fresh bill accepted for 2 months. सेकेंड बिल का ड्यूरेशन कितना था? तो सेकेंड बिल का ड्यू डेट आएगा 4 अप्रैल, लेकिन उसके पहले ही on 25th March 2022 Vishal retires the acceptance for 25,000, that is 25,000 का bill. The interest rebate, that is discount being 250. There is retirement of bill 25 मार्च को. सेकेंड बिल रिटायर हो गया है, 250 रुपए का रिबेट अलाउ किया है. गो टू बुक्स ऑफ अक्षय. 25th मार्च. बोलो क्या करोगे? $24,750. Rebate allowed account debit 250 to bills receivable account 25,000. Being retirement of second bill, being retirement of second bill, go to books of Vishal. 25 मार्च क्या करोगे? Bills payable account debit 25,000 to cash or bank account
24,750 to rebate earned. $250 being retirement of bill before its due date. Before its due date. अब इसके बाद क्या हुआ है? पहला बिल रिन्यू हुआ था, दूसरा बिल रिटायर हो गया। अब जो रिन्यू हुआ उसका ड्यू डेट क्या आ रहा है? कब रिन्यू किया था बिल? डोंट लुक एट मी। व्हेन वाज द बिल रिन्यूड? 4 मार्च, 2 महीने के लिए रिन्यू हुआ था। 4 अप्रैल, 4 मई प्लस 3 ग्रेस डेज, 7 मई। लेकिन प्रॉब्लम में लिखा है बिफोर द ड्यू डेट ऑफ द रिन्यूड बिल विशाल बिकम्स इंसॉल्वेंट। रिन्यूड बिल के ड्यू डेट के पहले ही विशाल इंसॉल्वेंट हो गया। अब विशाल इंसॉल्वेंट हो गया तो बिल कैंसिल हो जाएगा, बिल डिसऑनर हो जाएगा। एंड ओनली 50 पैसे इन रुपी कुड बी रिकवर्ड, आधा ही पैसा मिला। अब बिफोर ड्यू डेट बोल तो कौन सी डेट पे लेने का? तो बेटर वे है कि ड्यू डेट पे रे एंट्री करेंगे अपन। अब डेट कैसे लेंगे? बिफोर ड्यू डेट बोला है तो वी विल पास द एंट्रीज ऑन ड्यू डेट। तो एग्जैक्ट डेट नहीं दी है ना। व्हाट इज द एंट्री फॉर डिसऑनर ऑफ बिल इन द बुक्स ऑफ अक्षय? 7 मई। वो रिन्यूड बिल अमाउंट कितनी थी? विशाल अकाउंट डेबिट 16,400 टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। $16,400 being renewed bill dishonored due to insolvency. Being renewed bill dishonored due to insolvency. What will be the entry in the books of Vishal? 7th May. Bills payable account debit 16,000 to Akshay account 16,400. Being non-payment of bill, non-payment of renewed bill, being non-payment of renewed bill due to insolvency. Finally 50 paise in a rupee could be recovered from insolvency state. बोल तो 8,200 और बचे हुए 8,200 बैड डेट्स रहेंगे। लास्ट एंट्री इन द बुक्स ऑफ अक्षय 7th में बोलो। कैश और बैंक अकाउंट डेबिट बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू विशाल अकाउंट
16,400 being being receipt of final dividend being receipt of final dividend from insolvent estate from insolvent estate. And last entry in the books of Vishal, 7th May, Akshay account debit to 8,200 to deficiency 8,200 being payment of final dividend under insolvency. हो गया. फोर्थ एग्जाम प्रॉब्लम है. On 12th May 2020, A sold goods to B for 36,470 and drew upon letter two bills, one for 16,470 at 1 month and the other for 20,000 at 3 months. B accepted both the bills. 5th June, A sent both the bills to his banker for collection on due dates. First bill was duly met, but due to some temporary financial difficulties, B failed to honor the second bill on due date and the bank had to pay 20 as noting charges. However, on 16th August 2020, it was agreed between A and B that B would immediately pay 8020 in cash and accept a new bill at 3 months for 12,480, which included interest for postponement of part payment of dishonored bill. A immediately sent new acceptance to its bank for collection on the due date. On 1st October 2020, B approached A offering 12,240 for retirement of his acceptance. A accepted the request. You are required to pass journal entries of all the above transactions in the books of A. बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है वैसे 10 मार्क के लिए, और सिर्फ एक के बुक्स में एंट्रीज करने हैं, ए के, ओनली इन द बुक्स ऑफ ए. लिखो प्रॉब्लम नंबर 4, पेज नंबर 7 में लिखने की जरूरत है जर्नल एंट्रीज. डिक्टेट किया तो चलेगा. प्रॉब्लम नंबर 4, पेज नंबर 7. कल के आफ्टरनून लेक्चर में तो बहुत बड़ी बड़ी हस्ती आई थी अपने क्लास में. ऑनलाइन में नरेंद्र मोदी जी थे, राहुल गांधी जी थे. आज कोई नहीं है. आज सभा है क्या? पोहे खाने गए दोनों भी. अच्छा, टेस्ट सीरीज को गए आज वो. तुम्हारे एग्जाम खत्म होने के बाद, एग्जाम होने के बाद
आप सीए देखना। क्या क्या देखा है ना? अच्छा है। हाँ, और एकदम एकदम रियलिस्टिक बताया है। मैंने खुद ने देखा, देख रहा हूँ, हो गया मेरा लगभग देख के, इसलिए तो बोल रहा हूँ। मैंने भी इतने दिन देखा नहीं था, बट एकदम रियलिस्टिक है। अच्छा लिखा है। और बहुत सोच समझ के सीए कोर्स को पूरा समझा है, उसके बाद बनाया है। अच्छा है, नहीं क्यों बोल रहे लेकिन? अच्छा, देखा नहीं है? फिर क्यों नहीं बोल रहे? एग्जाम होने के बाद देखो। बबीता लिए, हाँ बबीता जी आए। बबीता जी पहले से ही है। बबीता जी का तो सवेरे ही हाई सर आ गया था। रेडी फॉर्मेट, फुल सीए। मतलब समझा नहीं मैं। क्या बोल रहे हो? ये बन के देखेंगे? नहीं नहीं, मेरा तो सजेशन है अभी देखो, एग्जाम के बाद। एक्चुअल में मैं बोल रहा हूँ कि क्या प्रॉब्लम्स फेस करते सीए के बच्चे, कहाँ गलतियां होती है, वो दिखाया है। मस्त दिखाया, और एकदम रियलिस्टिक है। तो आई कुड को रिलेट सो मेनी स्टूडेंट्स विद दैट सीरीज। कितने सारे स्टूडेंट्स मेरे को याद आए वो सीरीज देखते वक्त, ये बच्चे के साथ यही हुआ था। हाँ, डिस्ट्रैक्शंस कैसे अट्रैक्ट करते हैं, फिर फ्रस्ट्रेशन क्यों आता है। अकाउंट्स के पेपर के साथ जो हुआ इंटर के पहले, वो मेरे साथ हुआ है, तो मेरे को वो भी याद आया कि भाई अपने साथ भी यही हुआ था, इतना था कि, लेकिन मैंने पेशेंस रखे थे। मैंने पेशेंस रखे, और मैं पास भी हो गया वो अटेम्प्ट में। मस्त दिखाया है। ए अरे आ गए भाई, मोदी जी आ गए। प्रतीक्षा बोल रही सर वो आपका पुरस्कार बनाने में बिजी है। मोदी जी बोल रहे सर मैं इटली में था इसलिए बोल नहीं रहा था। राहुल गांधी भी आ गए, हाँ। हर्ष पूछ रहा है सर फाउंडेशन वापस किया तो चल, नहीं बेटा हर्ष, तू तो अभी इंटर पास होने वाला है, मेरे को मालूम है ना। अच्छी पढ़ाई करता है तू। ऑल द बेस्ट फॉर इंटर एग्जाम्स। नहीं नहीं, इंटर का स्टूडेंट है, जानता हूँ मैं उसको। तो वो पूछ रहा है सर फाउंडेशन वापस किया तो चलेगा क्या, क्या करेगा करके। चलो स्टार्ट करें। सिर्फ एक के बुक्स में जर्नल एंट्रीज करने के लिए बोले अपने को। ऑन 12th में ए सोल्ड गुड्स टू बी फॉर 36,470। राइट डाउन द फर्स्ट एंट्री। 12th में 2020। 12th में 2020। बी अकाउंट डेबिट 36,470 to sales account 36,470 to sales account, being goods sold on credit, and drew upon the latter two bills, one for 16,470 and the other for 20,000 at 3 months. Be accepted both the bills. Same date, 12th May. Bills receivable account debit. Bills receivable account debit 36,470 to B account 36,470, being two bills drawn being two bills drawn for 1 month and 3 months respectively, for 1 month
and 3 months respectively. On 5th June 2020, A sent both the bills to his banker for collection on the due dates. लिखो 5th June, bank for collection account debit 36,470. Two bills receivable account 36,470. Being bill sent to bank for collection. Then it is written the first bill was met duly. पहला बिल पे हो गया. पहले बिल का ड्यूरेशन कितना था? तो 12 मई को ड्रॉ किए हुए बिल है. एक महीना बोला तो 12 जून प्लस 3 मंथ्स अब 3 ग्रेस डेज 15th जून पहला बिल ऑनर हो गया. करो एंट्री 15th जून 2020 बैंक अकाउंट डेबिट 16,470. बैंक अकाउंट डेबिट 16,470 to bank for collection account to bank for collection account 16,470. Being first bill honored on due date. Being first bill honored on due date. आगे लिखा है बट ड्यू टू सम टेम्पररी फाइनेंशियल डिफिकल्टीज बी फेल टू ऑनर द सेकेंड बिल ऑन ड्यू डेट एंड बैंक हैड टू पे 20 रुपीज एज नोटिंग चार्जेस. सेकेंड बिल जो था वो ड्यू डेट पे डिसऑनर हो गया है. सेकेंड बिल का ड्यू डेट क्या आएगा? मई के आगे 3 महीने जून जुलाई अगस्त प्लस 3 ग्रेस डेज तो 15th अगस्त आ रहा है. 15th अगस्त हैपन्स टू बी public holiday due to Independence Day of India and therefore one day before that the bill will be due 14th August. डिसऑनर हो गया है. मैं बोलता हूं लिखो 14th August 2020 B account debit 20,020. B account debit 20,020 to bank for collection account 20,000 into bank account 20 to bank account 20. बैंक ने नोटिंग चार्जेस भी पे किए ना तो अपने को देने पड़ेंगे. टू बैंक अकाउंट 20 बीइंग डिसऑनर ऑफ सेकेंड बिल अब however on 16th August 2020 it was agreed between A and B that B would immediately pay 8020 in cash. 8,020 रुपए तुरंत वो पे करेगा and accept a new bill at 3 months for 12,480 which included interest for postponement of part payment of dishonored bill. ठीक है. 16 अगस्त को पार्ट पेमेंट आया बेटा 8,020 रुपए. बोलो एंट्री लिखो
16th August, cash or bank account debit, 8020 to B account 8020. Being part payment received. Being part payment received. टोटल कितना रिसीवेबल था? 20,000 ₹20, 20,000 प्लस नोटिंग चार्जेस 20, तो टोटल रिसीवेबल वॉज 20,020। उसमें से कितने मिल गए? 8,020। तो कितना आउटस्टैंडिंग है? 12,000। आगे पढ़ो ना क्या लिखा है। एंड एक्सेप्ट अ न्यू बिल एट 3 months फॉर 12,480 विच इंक्लूडेड इंटरेस्ट। बोलते इंटरेस्ट कितना? 480 का इंटरेस्ट आया। 16th August, नेक्स्ट एंट्री, बी अकाउंट डेबिट 480, बी अकाउंट डेबिट 480 to interest account 480. Being interest charged on outstanding balance. चलो फ्रेश बिल ड्रॉ करो। सेम डेट 16 अगस्त। बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट कितना आएगा? बिल अमाउंट 12,480। सब दिया है, प्रॉब्लम में है। बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट 12,480 टू बी अकाउंट 12,480. Being fresh bill drawn for 3 months. A immediately sent new acceptance to its bank for collection on due date 16th August. Bank for collection account debit 12,480. $12,480 to bills receivable account 12,480. Being bill sent to bank for collection. Being bill sent to bank for collection. फाइनली इस बिल का क्या हुआ है? On 1st October 2020, B approached A offering 12,240 for retirement of his acceptance. A accepted the request. चलो लास्ट एंट्री 1st October 2020, 1st October 2020, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट 12,240, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट 12,240, rebate allowed account debit 240, rebate allowed account debit 240 to bank for collection account
कंफ्यूजन होने का कोई कारण ही नहीं, बैंक के पास ही है बिल, अपने पास बिल्स रिसीवेबल है ही नहीं। टू बैंक फॉर कलेक्शन अकाउंट 12,480। ए ढोकले है, डेबिट के अमाउंट डेबिट कॉलम में लिखते रहते, क्रेडिट में नहीं। टू बैंक फॉर कलेक्शन 12,480 बीइंग, किसके पास ध्यान है बे? बीइंग बीइंग renew renewed bill retired before due date, being renewed bill retired before due date। Second problem, prepare journal entries for the following transactions in Samarth's books. Samarth's acceptance to RO for 1250 discharged by a cash payment of 500 and a new bill for the balance plus 25 for interest. G. Gupta's acceptance for 4,000 which was endorsed by Samarth to Sahani was dishonored. Sahani paid 20 bank charges, noting charges, bill withdrawn against check. Harshad retires a bill for 5,000 drawn on him by Samarth for 20 rupees discount. Samarth's acceptance to Patel for 19,000 discharged by Sandeep Chadda's acceptance to Samarth for the similar amount. समर्थ के बुक्स में 4 ट्रांजैक्शंस दिए, वैसे वो इंटरलिंक नहीं है, तो ये चारों के जर्नल एंट्रीज करने के लिए बोले हैं। लिखो प्रॉब्लम नंबर 2 पेज नंबर 7। In the books of Samarth, journal entries, ड्रॉ द फॉर्मेट, एक पेज का बना दो। हाँ ना, फिर तो अपन ने उनको देना ही पड़ेगा ना, तो मेरे तो बुक्स में टू बैंक ही आएगा ना। कैसे कैसे बैंक फॉर कलेक्शन में डेबिट बैलेंस कितना था? और तू बोल रहा है वो ट्रीटमेंट हो ही नहीं सकती। बैंक फॉर कलेक्शन जो है, जिसको भी दिया अपन ने कलेक्शन के लिए, वो बैंक ने पे किया, उनको अपने को पे करना ही पड़ेगा ना 20 रुपए तुरंत। तो बैंक फॉर कलेक्शन को क्रेडिट कैसे होगा? तू बैंक क्या आएगा ना अपने लिए। तो ज्यादा से ज्यादा तो वहां बोल सकता है टू कैश और बैंक, हमने कैश में दिए। मेरे को समझा तेरा डाउट क्या है, तो ग्रॉस मिस्टेक कर रहा है। बैंक फॉर कलेक्शन को क्रेडिट कैसे होगा? जो नोटिंग चार्जेस पे किए बैंक ने उसको, वो तो अपने को पेमेंट करना पड़ेगा ना बैंक को। आई गॉट योर एग्जैक्ट पॉइंट व्हाट यू आर सेइंग, कि तू बोल रहा है कि बैंक ने पेमेंट किए नोटिंग चार्जेस के। मैं बोल ही नहीं रहा हूं अपन ने किए, बैंक ने किया है, बट अपने को बैंक को देना पड़ता है तुरंत। तो वो एंट्री अपने बुक्स में आई है। पहला ट्रांजैक्शन पढ़ो, बहुत कंफ्यूजिंग है पहला ट्रांजैक्शन। Samarth's acceptance to RO for 1250 discharged by cash payment of 500 and a new bill for the balance plus 25 for interest। बोल तो क्या ही है? रिन्यूअल है। दिस इज रिन्यूअल। ओरिजिनल बिल अमाउंट कितना था?
1250, उसमें से कैश पेमेंट कितना दिया है, पार्ट पेमेंट 500 दिया है, पार्ट पेमेंट 500 दिया है, तो बच गया कितना 750, प्लस इंटरेस्ट कितना देना है 25, बोल तो 775 का फ्रेश बिल आएगा, समझा। अब चाहे तो इसके चार इंटरेस्ट कर सकते, चाहे तो चार कर सकते, बट अदरवाइज कंबाइन कर सकते, कंबाइन करे। बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, सेवन सेवन फाइव, 775, एक मिनिट, सॉरी 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 सॉरी, नहीं नहीं, अपन ड्रॉवर के नहीं, अपन रॉय के बुक्स में है, अपन रॉय के बुक्स में है, ड्रॉई के बुक्स में, समर जो है वो ड्रॉई है। बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट, ओरिजिनल बिल कितने का था 1250, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट 25, टू कैश और बैंक 500, एंड टू फ्रेश बिल कितना 775, being renewal of, being renewal of acceptance given to Arrow, being renewal of acceptance given to Arrow, second, G. Gupta's acceptance for 4,000, which was endorsed by Samarth to Sahani, was dishonored. Sahani paid 20 as noting charges. Bill withdrawn against check. जी गुप्ता ने एक्सेप्ट किया हुआ बिल, हमने एंडोर्स किया था सहानी को, वो बिल डिसऑनर हो गया। जब एंडोर्स बिल डिसऑनर होता है तो क्या एंट्री पास होती है, ड्रॉई अकाउंट डेबिट, दैट इज जी गुप्ता अकाउंट डेबिट, $4,020, 4,000 का बिल और 20 रुपए नोटिंग चार्जेस, ड्रॉई अकाउंट डेबिट टू एंडोर्सी अकाउंट टू सहानी अकाउंट, $4,020 के तो सहानी ने पे किया नोटिंग चार्जेस, being dishonor of endorsed bill, बिल इज विड्रॉन अगेंस्ट चेक। एक काम करो, इसको ए करो, अभी जो एंट्री की 2A 2B, बिल इज विड्रॉन अगेंस्ट चेक, बोल तो ड्रॉई से चेक आ गया, कितने का चेक आया 4,020, बैंक अकाउंट डेबिट टू जी गुप्ता अकाउंट, $4,020,
being check received from Roy against the bill. Being check received from Roy against the bill. Third one is very easy beta. Harshad retires a bill for 5,000 drawn on him by Samarth for 20 rupees discount. Bolo entry. Cash or how much? Rebate allowed. $22. 5,000. Being bill retired by Harshad. Fourth transaction is very interesting. अच्छे से पढ़ो, खुद इंटरप्रेट करो और बताओ मेरे को क्या करने का. समर्थ्स एक्सेप्टेंस टू पटेल, इसका मतलब हमारे लिए वो बिल्स पेएबल है. इज डिस्चार्ज बाय संदीप चड्डाज एक्सेप्टेंस टू समर्थ फॉर अ सिमिलर अमाउंट. बिल के बदले में बिल दिया, संदीप ने एक्सेप्ट किया हुआ बिल है, बोलता अपने लिए वो बिल्स रिसीवेबल है, वो हमने पटेल को दे दिया. पटेल को जो हमने बिल एक्सेप्ट किया था उसके बदले में, बोल तो बिल्स पेबल के अगेंस्ट में बिल्स रिसीवेबल दिया. व्हाट इज द एंट्री? बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट. $19,000 to being being bill drawn on Sandeep, being bill drawn on Sandeep endorsed to Mr. Patel, endorsed to Mr. Patel. हो गया. जो थर्ड सम है वो थर्ड सम एकोमोडेशन बिल पे है, वो अभी समझाना बाकी है. बट बिफोर वी गो टू एकोमोडेशन बिल, लेट अस क्विकली अंडरस्टैंड प्रॉमिसरी नोट्स. लिखो हेडिंग.
प्रॉमिसरी नोट का कंसेप्ट समझ में आने के लिए ध्यान दो मेरे पास। प्रॉमिसरी नोट अच्छे से समझ में आने के लिए या दिमाग में बैठाने के लिए द सिंपलेस्ट वे इज कंपेयर इट विद बिल ऑफ एक्सचेंज। बिल ऑफ एक्सचेंज के साथ इसको कंपेयर करो, तुरंत ध्यान में आ जाएगा। गाइस, बिल ऑफ एक्सचेंज इज एन ऑर्डर टू पे, whereas promissory note is a promise to pay. बिल ऑफ एक्सचेंज के थ्रू ड्रॉवर ड्रॉई को ऑर्डर देता है टू पे अ सर्टेन सम। प्रॉमिसरी नोट के थ्रू डेटर क्रेडिटर को प्रॉमिस दे रहा है कि ही विल बी पेइंग अ सर्टेन अमाउंट। सो बहुत बड़ा डिफरेंस है दोनों में। इट इज एन ऑर्डर टू पे बिल ऑफ एक्सचेंज, whereas promissory note is an it is a promise to pay. Bill of exchange is drawn by a creditor on his debtor, whereas promissory note will be drawn by a debtor and is given to a creditor। उल्टा है कि अगर सेलर ने ड्रॉ किया तो बिल ऑफ एक्सचेंज है, और अगर बायर ने ड्रॉ किया तो वो प्रॉमिसरी नोट होता है। इन बिल ऑफ एक्सचेंज देर आर थ्री पार्टीज, ड्रॉवर ड्रॉई पेई। इन केस ऑफ प्रॉमिसरी नोट देर आर ओनली टू पार्टीज, प्रॉमिसर एंड प्रॉमिसी। बिल ऑफ एक्सचेंज का एक्सेप्ट होना कंपल्शन है। बिफोर एक्सेप्टेंस बिल वोंट बिकम द बिल। एक्सेप्टेंस ऑफ ड्रॉ इज कंपल्सरी। प्रॉमिसरी नोट पे बेटा कोई एक्सेप्टेंस नहीं होता। अभी प्रॉमिस टू पे है, उसमें क्या एक्सेप्ट करने का? आई प्रॉमिस टू पे यू अ सम ऑफ ₹5,000। आई प्रॉमिस टू, मैं पे करने का प्रॉमिस कर रहा हूं, उसमें आपके एक्सेप्टेंस का क्या सवाल आया? विल देयर बी एक्सेप्टेंस इन केस ऑफ प्रॉमिसरी नोट? नो, नो। वेरी इंपॉर्टेंट, very important, a bill of exchange can be drawn, made payable to bearer. Bearer promissory notes are not allowed because in India bearer promissory notes are currency notes। अपने पास currency notes बोल के यूज होते हैं bearer promissory note। इस बैच में इतना टाइम है नहीं जितना रेगुलर बैच में डीप में मैं जाके समझाता हूँ। करेंसी एल्बम दिखाया था मैंने आपको, अलग अलग कंट्रीज के करेंसी नोट्स। क्या होता है कि हम लोग जिसको पैसा बोल रहे हैं इंडिया में, वो पैसा बोल तो एक्चुअल में पैसा ही नहीं, वो उतने वैल्यू के प्रॉमिसरी नोट्स है जो आरबीआई ने इशू किए। किसी भी नोट को निकाल के देख लो, एक्सेप्ट ₹1 नोट, ₹1 का नोट छोड़ दिया, तो बाकी किसी भी तुम इसको निकाल के देख लो नोट को, उस पर यही लिखा हो रहता है कि आई प्रॉमिस टू पे द बेरर अ सम ऑफ रुपीज, जो भी अमाउंट है। अब मेरे को बोलो ₹500 का नोट हाथ में लेके अपन बोलते हैं ₹500। अगर ये ₹500 तो उस पर ऐसा क्यों लिखा है कि आई प्रॉमिस टू पे द बेरर अ सम ऑफ ₹500? अरे यही ₹500 है ना, फिर और क्या देगा ₹500? So this is not ₹500, it is promissory note of ₹500 issued by RBI. And in India, these promissory notes are accepted as currency notes, and therefore bearer promissory notes allot करने का राइट अथॉरिटी सिर्फ और सिर्फ आरबीआई के पास है, तो आप में बेरर प्रॉमिसरी नोट्स इशू नहीं कर सकते। So understand guys, promissory note is a written promise to pay given by a debtor to the creditor. It doesn't involve any kind of acceptance by the other party. It involves only two parties, promisor and promisee, and bearer promissory notes are not allowed. एग्जाम में डिस्टिंक्शन पूछते हैं और अपने को ये लिखना भी है। लिखो डिस्टिंक्शन बिटवीन बिल ऑफ एक्सचेंज एंड प्रॉमिसरी नोट। डिस्टिंक्शन बिटवीन distinction between bill of exchange and promissory note। serial number, bill of exchange, promissory note।
serial number, bill of exchange, promissory note. Serial number 1. बिल ऑफ एक्सचेंज में लिखो इट इज एन ऑर्डर टू पे. इट इज एन ऑर्डर टू पे. प्रॉमिसरी नोट में लिखो इट इज अ प्रॉमिस टू पे. सीरियल नंबर 2. बिल ऑफ एक्सचेंज में लिखो इट इज ड्रॉन बाय a creditor on his debtor. प्रॉमिसरी नोट में इट इज गिवन बाय a debtor to his creditor. It is given by a debtor to his creditor. Serial number 3. There are 3 parties to bill of exchange. That is drawer, drawee, and payee. प्रॉमिसरी नोट में लिखो there are only 2 parties to promissory note. That is promisor and promisee. That is promisor and promisee. Serial number 4. बिल ऑफ एक्सचेंज में लिखो being order comma drawings acceptance is compulsory. Being order drawings acceptance is compulsory. इधर लिखो प्रॉमिसरी नोट में being promise
being promises acceptance is not required. Promises acceptance is not required. प्रॉमिस का कभी एक्सेप्टेंस नहीं रहता ना. तुमने किसी को प्रॉमिस दिया है तो तुम्हारी कमिटमेंट है वो पूरा करने की. सामने वाले का एक्सेप्टेंस का क्या सवाल आता. सामने वाले ने ऑर्डर दिया तो बात अलग है. तेरे वास्ते में प्रॉमिस दे रहे तो भाई सामने वाले का क्या संबंध है, बराबर ना. सीरियल नंबर 5. A bearer bill of exchange is allowed. A bearer bill of exchange is allowed इधर लिखो प्रॉमिसरी नोट में a promissory note cannot be made payable to the bearer. A promissory note cannot be made payable to the bearer. लिख दिया. यस. सो प्रॉमिसरी नोट एंड बिल ऑफ एक्सचेंज का डिफरेंस क्लियर है. नाउ राइट डाउन. accommodation bill. Accommodation bill. A very unique concept which we come across in accommodation bill. Altogether different concept है. And I think जहां तक मैंने देखा है सिलेबस, नए फाउंडेशन के सिलेबस में से accommodation bill निकल चुका है. तो I think this is the last time I'll be teaching this. सो क्या कंसेप्ट है एकोमोडेशन बिल का और ये अपन डिस्कस करेंगे. इट विल टेक सम टाइम और उसका एक प्रॉब्लम भी है, थर्ड प्रॉब्लम, वो भी सॉल्व करना है. तो आज वैसे मैं आपको कंपैरेटिवली 6 मिनट पहले छोड़ रहा हूँ, तो 6 मिनट का सरप्लस मेरे पास रहा. तो मंडे के लेक्चर में मैं ये 6 मिनट एक्स्ट्रा यूज करूंगा. ठीक है. आई विल फिनिश दिस ऑन मंडे इन फर्स्ट 1 hour एंड देन आई विल स्टार्ट विथ एवरेज ड्यू डेट. सी यू ऑन मंडे गाइज. बाय बाय.